Hello and welcome to my channel Biostudies. Myself Komal, your biology tutor. In this lecture, we study about morphology of flowering plants, and today's topics are parts of a flower and estivation. So let's start. First topic is parts of a flower. Each flower normally has four whorls, that is, calyx, corolla, androecium, and gynoecium. So these are the four floral whorls, that is calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Here you can observe it is stamen or the male part and carpel is the female or gynoecium part. Stamen consists of anther and filament, and carpel consists of stigma, style, and ovary. These both are the reproductive parts of a flower. Then accessory parts of a flower are petals और sepals. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. सो दीज आर दी बेसिक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. हम वन बाय वन सबको डिस्क्राइब करेंगे. सो फर्स्ट इज कैलिक्स. Calyx is the outermost whorl of the flower and the members are called as sepal. Right, so calyx एक whorl है जिसमें जितने भी individual members हैं, these are known as sepals. Generally sepals are green, leaf like and protect the flower in the bud stage. Bud stage में flower को protect करता है. वो green होता है, leaf like होता है. देखिए इस पिक्चर में देखिए कैलिक्स का पिक्चर है और यहाँ पर आपको दिखेगा इट इज़ लीफ लाइक ग्रीन इन कलर. इट इज़ कैलिक्स. कैलिक्स में बी गैमोसैपलस और कैलिक्स में बी पॉलीसैपलस. नाउ व्हाट इज गैमो? अच्छा देखिए, सैपलस रिलेटेड टू सैपल्स मीन्स कैलिक्स का मेंबर, और गैमो का मीनिंग होता है यूनाइटेड यानी कि फ्यूज्ड, एंड पोली का मीनिंग होता है फ्री. So the calyx may be gamosapalous as in case of sepals united, and calyx may be polysapalous means sepals are free not fused. ठीक है, इस पिक्चर में देखिए, इसमें क्लियर होगा ये किसका पिक्चर है. दिस इज द पिक्चर ऑफ gamosapalus. Gamosapalus means united sepals. Sepals are fused. तो यहाँ देखिए जो ये सेपल्स है वो इस फ्लावर से इसके जो हम कह सकते हैं पेटल से क्या है, फ्यूज्ड है. सो दैट इज गैमोसैपलस. यस, इस पिक्चर में देखिए ये इस फ्लावर से फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है. सो दिस इज पॉलीसैपलस. नेक्स्ट floral whorl is corolla. Corolla is composed of petals. As corolla is brightly colored, so it helps to attract the insects, as it is helpful in pollination process. Yes, you know about pollination, that is pollen grain transfer from one to another flower. Next is united corolla, that is gamopetalous. Now petals are here united or fused. Free corolla, that is polypetalous means petals are free. यस, इस पिक्चर में देखिए दिस इज पोलीपेटलस. पोलीपेटलस मीन्स पेटल्स आर फ्री. यहाँ पर देखिए अटैच नहीं है एक दूसरे से, और यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे में फ्यूज्ड है. देखिए एक चीज़ इस तरीके से हो दैट इज़ फ्री, और एक इस तरीके से ज्वाइन हो दैट इज़ फ्यूज्ड. तो फ्यूज्ड कंडीशन इज गैमो एंड फ्री कंडीशन इज पोली. अदर इन केस ऑफ कैलिक्स तो हम सैपल्स वर्ड यूज़ करेंगे, सैपलस, and in case of corolla or petals we use the word that is petalous. very easy. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी सिमिलर टर्म्स है बट देर इज़ अ डिफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट, द शेप एंड कलर ऑफ corolla वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स. corolla may be of tubular, bell shaped, funnel shaped, wheel shaped. सो corolla यानी कि जो कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर्स में देखते हो आपने, डिफरेंट फ्लावर्स देखे होंगे, तो उनमें जो corolla यानी कि कलर्ड जो पोर्शन होता है, जो पेटल्स होती हैं बेसिकली वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं. वो बेल शेप की हो सकती हैं, ट्यूबुलर हो सकती हैं, वी. सो दीज आर सम डिफरेंट शेप्स ऑफ corolla. Next topic is estivation. Estivation is the mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same whorl is known as estivation.
यानी कि इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट होती है सेपल्स की या फिर पेटल्स की। हम देखते हैं सेपल्स या पेटल्स की अरेंजमेंट एक फ्लोरल बड में विद रिस्पेक्ट टू दी अदर मेंबर्स, यानी कि जो दूसरे मेंबर्स हैं वर्ल्ड्स में, है ना, दूसरे मेंबर्स के रिस्पेक्ट में कैसे उनकी अरेंजमेंट की गई है, दैट इज नोन एज estivation. So let's start. First is types of estivation. So there are basically four types of estivation, that is vexillary, valvate, imbricate and twisted type of estivation. एक बार दोबारा देखिए, valvate, vexillary, imbricate and twisted estivation. So first is valvate estivation. अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो बेसिकली अगर आप पेटल्स को देख रहे हो या फिर सेपल्स को देख रहे हो, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, क्या वो एक दूसरे से ओवरलैप है, क्या वो एक दूसरे के मतलब उनके बीच में गैप है, सो इस बेसिस पे ही अरेंजमेंट है। वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि व्हेन सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, जस्ट टच किया है विदाउट ओवरलैपिंग, यानी कि इनमें ओवरलैपिंग नहीं है, जस्ट टच किया है। इसके एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है। इस पिक्चर में देखिए वाल्वेट एस्टिवेशन, वो ओवरलैप नहीं कर रही हैं, ठीक है, जस्ट टच कर रही है बट एक दूसरे के ऊपर नहीं आई है। ओवरलैप समझते हो ना, ओवरलैप का मीनिंग होता है कि इसके ऊपर आ जाना, है ना, ओवरलैप हो जाना, लेकिन ये ओवरलैप नहीं हो रही हैं, जस्ट एक दूसरे से हल्के से गैप में है लेकिन टच कर रही है, ओवरलैप नहीं कर रही है। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वाल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके एग्जाम्पल इज कैलोट्रोपिस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, मतलब कि वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज, एक मार्जिन अपेंडेज का ओवरलैप करे दूसरे को, एंड सो ऑन, यानी कि नेक्स्ट वाला नेक्स्ट को ओवरलैप कर रहा है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट को, यानी कि सभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज ट्विस्टेड। अब इसको नेम से भी याद रखना, ट्विस्टेड है, कुछ एक दूसरे को सभी ट्विस्ट कर रहे हैं, यानी कि सब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इस सेकेंड पिक्चर में देखिए कि अब ये सभी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट पेटल है, ये सेकंड वाले को ओवरलैप कर रही है, सेकंड वाला थर्ड वाले को, यानी कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देखिए जो ये ऊपर वाले पिक्चर हैं ये फ्लोरल दिखा रखा है और नीचे उस चीज़ को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रखा है ताकि हम इस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। सो ये जो सेकेंड टाइप ऑफ एस्टिवेशन है, दिस इज ट्विस्टेड टाइप ऑफ estivation. Next is imbricate type of estivation. If the margin of sepals or petals overlap one another but not in a particular direction. ट्विस्टेड टाइप में क्या था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, बट इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। सो इस टाइप को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, यानी कि जो ओवरलैपिंग है वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है। इसके एग्जाम्पल है केशिया एंड गुलमोहर। यस, इसमें देखिए, इस पिक्चर में देखिए, आप इस पिक्चर में देखिए बात को, ये देखो, ये बाहर है, ये अंदर है, ये अंदर है, फिर ये बाहर है और ये बाहर है। इसका मतलब समझ पा रहे हो आप कि कौन किसको ओवरलैप कर रहा है। अब ये फर्स्ट वाला इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है बट ये इसके अंदर है, ये वाला इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है, ये वाला इनको ओवरलैप कर रहा है, तो एक यूनिफॉर्म में नहीं चल रहा है, ये यूनिफॉर्म में नहीं चल रहा है। जबकि ट्विस्टेड में आप देखिए, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, बट यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, याद रखोगे। नेक्स्ट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन इन पी बीन फ्लावर्स। इसके एग्जाम्पल्स है पी और बीन। देयर आर 5
पेटल्स। यहाँ पर क्या होते हैं 5 पेटल्स होते हैं और जो लार्जेस्ट होता है यानी कि जो स्टैंडर्ड होता है वो ओवरलैप करता है द 2 लेटरल पेटल्स को, जिसे उसने बोला है विंग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मेन है लार्जेस्ट है उसे स्टैंडर्ड बोला गया है, जिसको वो ओवरलैप कर रहा है 2 लेटरल पेटल्स को उसे विंग्स बोला गया है, विच इन टर्न ओवरलैप दी 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स जो उसके अंदर है उनसे छोटी, उनको कील बोला गया है, वो उनको ओवरलैप कर रही हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी और पैपिलोनेशियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन, इट्स द अनदर नेम ऑफ वैक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ पर देखिए दिस वन इज द स्टैंडर्ड जो आप कह सकते हो लार्जेस्ट पेटल है। ये लार्जेस्ट पेटल इन 2 लेटरल पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ समझिए, इन 2 लेटरल को ये ओवरलैप कर रहा है। ये ग्रीन से जो मैं बता रही हूँ ये 2 लेटरल है। इसके बाद जो सबसे छोटा है 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स जिसे उसने कील बोला है, वो सबसे लास्ट में उसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, जिसे मैं ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसमें लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होगा, 2 लेटरल पेटल्स विंग्स होंगे और उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स होंगे जिसे हम कील कह रहे हैं, एंड इनकी जो अरेंजमेंट होगी उसे हम वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन कह रहे हैं या फिर पैपिलोनेशियस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, दैट इज पी एंड बीन। अब क्लियर हो गया होगा कि एक बार क्विक रिवाइज भी कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना, कि वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वाल्वेट में क्या होता है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। पॉइंट नंबर 1। ट्विस्टेड में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन 1 by 1 सो ऑन ओवरलैपिंग चलती है। एम्ब्रिकेट में क्या होता है कि ओवरलैपिंग तो होती है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। वैक्सिलरी में क्या होता है कि पी और बीन के अकॉर्डिंग 5 पेटल्स होते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड होता है लार्जेस्ट और 2 उसके नीचे आते हैं लेटरल पेटल्स जिसे हम विंग्स बोल रहे हैं, वो ओवरलैप करते हैं 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स जिसे हम कील कह रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी।